Hello, dear learners. Welcome back to With Siksha. Today's current affairs is brought to you by With Siksha. So let us begin. Today's date, 1st of August. The month of August has started, and all the important current affair news are as follows. The first news is there are some key cabinet decisions that have been made regarding Jeevan Anuprerna scheme, and some more schemes are presented in the eyes of cabinet, and they have made some announcement. So this is the first important news. The second important news is 56,000 crore erosion project underway Majuli. Majuli is just not a riverine island. It is the biggest riverine island, but it has a certain cultural significance too for the state of Assam, and it is culturally a more one of the biggest centers of culture. And Assam government and government of India, they are trying to preserve this riverine island. So 56 crore rupees का there is one erosion project that is undergoing. तो उसके लिए जो है article आया है, we will look into that article. And last, I think one important is Myanmar, they have lifted up the emergency. So the military coup that was undergoing since I think 4 or 5 years, it's been 5 years, 5 साल से जो military coup चल रहा था, now it has ended and they are planning to conduct the election by the year end. ठीक है, तो ये 3 important articles है. Let us look all the articles. The first article is there are some major key announcements that have been made. There are many of the key announcements. Some of the key announcement is written over here, like land settlements for the indigenous families in Dhemaji. All right. So the people, the indigenous tribal people of Dhemaji, those who are living the communities, let's say of the missing people. ठीक है. तो जो missing है, जो missing people है, they live नियर धेमाजी, राइट. तो जो वहां के जो इंडिजिनियस ट्राइब्स और कम्युनिटीज है उनको लैंड सेटलमेंट करके, बिकॉज दे आर द सन ऑफ द सॉइल, राइट. व्हाट डू वी कॉल देम द भूमिपुत्र, राइट. सो भूमिपुत्रस को उनको लैंड का जो उनका सेटलमेंट्स है उनका क्लेम्स के लिए यहाँ पर उनको इंडिजिनियसली सेटलमेंट करवाया जा रहा है. ये एक बड़ा की डिसीजन लिया गया. बाकी की डिसीजन हम देख लेते हैं. जैसे जीवन अनुप्रेरणा स्कीम, ठीक है, कैबिनेट ने अप्रूव किया है जीवन अनुप्रेरणा स्कीम. ये किसके लिए है? दे कवर ऑल फुल टाइम करेंट रिसर्च स्कॉलर्स इंक्लूडिंग दिव्यांग स्कॉलर्स. ये रिसर्च स्कॉलर्स के लिए ये स्कीम लाया गया है जो इंक्लूड करते हैं दिव्यांग स्कॉलर्स, दोज हु आर एनरोल्ड इन गवर्नमेंट पब्लिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेंटर स्टेट सिचुएटेड इन असम. ठीक है, जो भी एडमिट हुए हैं ऑन और आफ्टर अप्रैल 1 2021, उन सबका जो जितना भी खर्चा है, एकेडमिक जो एक्सपेंसेस है उनको उठाएगा द गवर्नमेंट अंडर द जीवन अनुप्रेरणा स्कीम. ठीक है, इट इंक्लूड्स द दिव्यांग स्कॉलर्स टू. सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ना. दिस इज एन इम्पोर्टेंट वन. ठीक है, so please make sure you're writing this in your answers and notes. Owing to the exclusion of all existing full-time research scholars who are pursuing irrespective of any reference years, the total number of potential beneficiaries would now increase from 1300 to 9953, almost 10,000. और इसमें काफी बड़ा आउटले भी है of 26.21 crore. So हमारा स्टेट रिसर्च को बहुत ज्यादा पुश कर रहा है, रिसर्च एक्टिविटीज को जो है वी आर पुशिंग, एंड नॉट जस्ट गवर्नमेंट ऑफ असम बट ऑल्सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू. सो आपको इस साल के बजट में बोथ इन बजट ऑफ असम एंड बजट ऑफ इंडिया यू विल सी वन इम्पेटस गिवन टू द रिसर्च एक्टिविटीज. ठीक है, ऑल्सो द कैबिनेट हैज ग्रांटेड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ऑफ 24/7 टैप वाटर सप्लाई स्कीम फॉर बदरपुर टाउन. ठीक है, बदरपुर टाउन में 24/7 जो है टैप वाटर सप्लाई दिया जाएगा फ्रॉम द बराक रिवर. ठीक है, और इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट कुछ ऑलमोस्ट 50 करोड़ के आसपास आने वाला है. और ये जो है 7 साल के लिए इसको ऑपरेशन में रखेंगे और ये इसका मेंटेनेंस का काम भी सरकार ही उठाएगी. तो 7 साल के लिए हर घर में टैप वाटर जो है ये इंश्योर करवाएंगे गवर्नमेंट ऑफ असम. ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? अनइंटरप्टेड पोर्टेबल वाटर सप्लाई होना चाहिए घरों में, एवरी हाउस होल्ड इन बदरपुर. और यहाँ पे क्या है, एडवांस वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज को भी लाएंगे ताकि जो ग्रे वाटर मैनेजमेंट है या फिर जो वाटर शेड एक्टिविटीज है उन सबको हम अच्छे से प्रिजर्व कर पाए, ताकि जो वाटर है फ्रेश वाटर रन ऑफ ना हो जाए. ठीक है,
तो उसके लिए मैनेजमेंट टेक्निक्स को लाया जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट को डिजाइन भी इसी तरीके से किया गया है कि जो टाउन का जो वाटर डिमांड्स है उसको फुलफिल करते रहे बाय अंटिल 2057 तक, ये पूरे टाउन का वाटर का जो डिमांड्स है उसको फुलफिल करते रहे। सो दिस इज अ वेरी बिग स्टेप, ठीक है, I would say important step taken by the government of Assam, and other includes to support the families of deceased Swajal Mitras या फिर जल सहायक who died in service. The cabinet approved the provision of 5 lakh rupees as ex gratia assistant to the next in of kin, ठीक है। तो जो भी जैसे स्वजल मित्र है या फिर जल सहायक है, जो वो जल से एसोसिएटेड कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स से दे आर वर्किंग अंडर द जल जीवन मिशन और रिवर से पानी को वापस लेकर आने में एंड देन टैंकर सप्लाईज वगैरह जो प्रोवाइड करते हैं, तो वो हो जाते हैं हमारे जल सहायक, ठीक है। जो टैंकर फैसिलिटी वगैरह आपको आपके एरियाज में कभी कभी मिलता होगा ना, सो वो जल सहायक है। वो सब जो जल मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर है उसके अंदर जो काम करते हैं उनको जल स्वजल मित्र या फिर जल सहायक कहा जाता है। जो भी उस हु डाई इन सर्विस उनको 5 लाख रुपीस का एक्स ग्रेशिया असिस्टेंस दिया जाएगा। जो नेक्स्ट इन किन है, लेट्स से द चिल्ड्रन और द वाइफ ऑफ द डिसीज्ड, उन सबको दिया जाएगा, ठीक है, स्पाउस ऑफ द डिसीज्ड आई शुड से। The decision reflects government's recognition of their contribution and commitment to the welfare of the families. ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। So these are the key decisions. I would want you mark the जीवन अनुप्रेरणा स्कीम. This is an important one, ठीक है। For the vulnerable sections के लिए, देखिए दिव्यांग स्कॉलर्स के लिए ये स्कीम लाया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलिए। नेक्स्ट न्यूज है 56 करोड़ का इरोजन प्रोजेक्ट है अंडरवे इन माजुली, ठीक है। माजुली जो है हमें पता है लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। इट हैज continuously it is being eroding and there are reports, I think the IPCC-R6 report, it says that the Majuli might get eroded by 2050, yes, by 2050 it might get eroded completely. So we need to protect Majuli, and Majuli is not just a riverine island, it is the center of culture, hub of culture. The Khotros of Assam, it was the breeding ground for cultural renaissance of the Assam, ठीक है, of Assam. It was a center of cultural renaissance, right? So governments, both the government of state and India have taken massive steps to प्रोटेक्ट दिस रिवराइन आइलैंड, एंड इसको इसीलिए ताकि इसका जो एजुकेशन हो वो इम्पोर्टेंट, वो अच्छे से हो पाए, इसीलिए 2016 में इसको एज अ डिस्ट्रिक्ट अनाउंस किया, ठीक है, इसको एज अ डिस्ट्रिक्ट अनाउंस किया गया था। सो दीज आर दी स्टेप्स दैट वर टेकन बाय द गवर्नमेंट, एंड अभी भी बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं बाय द गवर्नमेंट। सो ये एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, माजुली को प्रोटेक्ट करने के लिए द गवर्नमेंट हैज अनाउंस सम ऑफ स्कीम्स नहीं बट कुछ ऐसे कुछ जो है फंड्स एलोकेट किए हैं टू दी ब्रह्मपुत्र बोर्ड, ठीक है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर कुछ फंड जो है वो एलोकेट किए गए, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें व्हाट इज द allocated amount, it is 56 crore rupees, ठीक है, 56 crore rupees. So यहाँ पर the project का नाम क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ माजुली आइलैंड फ्रॉम फ्लड एंड इरोजन रिवर ब्रह्मपुत्र फेज 5, ठीक है, ये है प्रोजेक्ट का नाम। इसमें क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बैंक प्रोटेक्शन रिसोर्स है। देखिए नदी इस तरीके से फ्लो करती है, ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में नदी ऐसे करके फ्लो कर रही है तो वो यहाँ का बैंक को इरोड करती है, यहाँ के बैंक को इरोड करती है। इसको हम कहते हैं क्लासिकली वी कॉल इट बैंक इरोजन, ठीक है, बैंक इरोजन। तो बैंक्स को जब तक हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, है ना, तब तक ये जो रिवर है उसको भी वो भी अपना इरोजन जो है वो काटते चलेगी यूजिंग मेजर्स पॉर्क्यूपाइनिंग, ठीक है, इसको पॉर्क्यूपाइनिंग मेजर कहते हैं। मैं आपको फोटो दिखाऊंगी, आपको समझ में आएगा कि ये इस तरीके से रिवर है, रिवर के आसपास जो है ऐसे वुडन पॉर्क्यूपाइंस बना दे, ठीक है, इस तरीके से पानी के बीच में ये इस टाइप के वुडन पॉर्क्यूपाइंस ये बैंक्स के पास बनाए जाते हैं, ठीक है, इस टाइप से पॉर्क्यूपाइनिंग करते हैं, ठीक है। ये पॉर्क्यूपाइनिंग क्या करता है, इस टाइप से कुछ पॉर्क्यूपाइनिंग किया जाता है। ये पॉर्क्यूपाइनिंग क्या करता है, पानी की फ्लो को रोकते हैं, उसका जो करंट है उसको स्लो डाउन करते हैं, जिसके कारण इरोजन भी कम होता है, ठीक है।
he said that the Brahmaputra board in collaboration to INTAC. अब what is INTAC? INTAC is an international trust जो कल्चर और हेरिटेज को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है. हैज टेकन अप कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी फॉर रिवर एंड आइलैंड्स इन ब्रह्मपुत्र which covers 30 islands. अब सिर्फ एकलौता माजुली तो नहीं है, there are many more riverine islands that are made by the mighty Brahmaputra river, which includes the Umananda island, right, the Peacock island also. तो ऐसे 30 islands को उन्होंने नोट डाउन किया है और स्पेशल अटेंशन तो माजुली को दिया जा रहा है, जिसमें कम्युनिटी इंक्लूसिव अप्रोच हो और सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो, ताकि रिवर जो है वो इरोजन ना कर पाए, ज्यादा से ज्यादा कम से कम इरोजन करे, ठीक है. इसमें देखिए कि 27 स्क्वायर किलोमीटर्स का जो है देखा जा रहा है कि जो कमलावारी है, कमलावारी इज प्लेस नियर वेरी क्लोज टू माजुली, वहां पर क्या कर रही है, रिवर जो है माजुली से मिट्टी उठा के कमलावारी में डिपॉजिट कर लिया, ठीक है. सो ओवरऑल एंड अप्रोक्सीमेटली 75 स्क्वायर किलोमीटर हैव बीन इरोडेड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ माजुली, ठीक है. माजुली से 75 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का रीजन जो है इरोजन हो गया है, and an area approximately 58 square kilometer has witnessed sediment deposition along the banks of Brahmaputra within Majuli. अब ऐसा नहीं है सिर्फ इरोजन ही हो रहा है, कहीं ना कहीं से डिपोजिशन भी हो रहा है, लेकिन इरोजन का संख्या डिपोजिशन की संख्या से बहुत ऊपर है. 75 स्क्वायर किलोमीटर इरोजन हो रहा है तो सिर्फ 58% डिपोजिशन हो रहा है. और डिपोजिशन होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है ना, you have to be very sturdy to make infrastructure, तो ये एक बड़ा इशू यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक है. इंटरेस्टेड बाय ब्रह्मपुत्र बोर्ड टू CWPRS, द स्टडी यूटिलाइज सैटेलाइट इमेजरी फ्रॉम 1986 टू 2023. सैटेलाइट इमेजरी यहाँ से यूटिलाइज किया गया टू एनालाइज द रिवर चैनल, रिवर का बिहेवियर क्या है और कौन कौन से मेजर बैंक्स है वो आते हैं, और डिपोजिशन और इरोजन का क्या पैटर्न है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी यहाँ पे सैटेलाइट इमेजरीज यूज किए जाएंगे, ठीक है. अब मैं दिखाती हूँ आपको पोर्क्यूपाइनिंग. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पोर्क्यूपाइनिंग. सी दिस इज द रिवर, रिवर फ्लो कर रहा है, करंट यहां से आके ये बैंक इरोजन यहां से करता है, काट देता है, ठीक है. रिवर जो है यहां से कटिंग करते हुए चलता है, तो ये करंट यहां से क्योंकि इतना तेज जाएगा तो ये इसीलिए ये मिट्टी जो है यहां से खाली होते जाता है, ठीक है. तो यहाँ पर जब इस टाइप का पोर्क्यूपाइन स्ट्रक्चर जो है रेडी कर दिया जाए तो रिवर जो है वो उसका फ्लो बीच से होके चला जाएगा, ठीक है. वो बीच से ही फ्लो करते हुए जाएगी और आगे बढ़ जाएगी. दिस इज एन इमेज ऑफ पोर्क्यूपाइनिंग, ठीक है. चलिए, we can move to the last news. The last news is Myanmar ends state emergency, plans to hold election by year end, ठीक है. तो यहाँ पर म्यांमार के गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि थर्सडे को अनाउंस किया था कि इमरजेंसी जो है इन्होंने जो डिक्लेयर किया था आफ्टर सीजिंग पावर 4.5 years ago and restructuring its administrative bodies to prepare a new election by end of the year. 4.5 साल पहले मिलिट्री कू हुआ था इन म्यांमार, अब उसको वो एंड करेंगे एंड एंडिंग जो है यहाँ पर इस साल के एंड में इलेक्शंस भी हो जाएगा. द प्लान्स फॉर द पोल ऑफ एन अनस्पेसिफाइड डेट इन दिसंबर फेस सीरियस ऑब्स्टेकल्स, ठीक है. बहुत सारे सीरियल ऑब्स्टेकल्स चल रहे, जैसे सिविल वॉर है, बहुत सारे कंट्री के बहुत सारे एरियाज में अभी भी सिविल वॉर कंटिन्यूअसली चल रहे हैं. वाउज बाय ओपोनेंट्स ऑफ मिलिट्री रूल टू डिरेल द इलेक्शंस बिकॉज इट बिलीव्स इट इज नीदर फ्री नॉर फेयर, ठीक है. ये सारे इश्यूज है कि एक तो ये सोच रहे कि जो पार्टीज है, ठीक है, वो सोच रहे कि फ्री फेयर इलेक्शन नहीं होगा. दूसरा क्या है, बहुत सारी जगह में यहाँ पे क्या है कि सिविल वॉर चल रहे हैं जिसके कारण मिलिट्री हुंटा वर्सेस दी, है ना, आर्मी, ये सब भी चल रहा है जिसके कारण देर आर चांसेस कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ना हो. अंडर द रिस्ट्रक्चरिंग द हेड ऑफ मिलिट्री गवर्नमेंट सीनियर जनरल मिन ऑन्ग लैंग gives up 2 posts but will serve in other position, जो कि उनको सेंटर ऑफ पावर में फिर भी रखेगा. तो जो मिलिट्री हेड है गवर्नमेंट के वो अपना पोस्ट तो गिव अप कर लेंगे, लेकिन फिर भी एक स्टेबल मिलिट्री पोजीशन बनाए रखने के लिए वो एक कोई ना कोई पोजीशन लेंगे जो उनको फिर से सेंटर ऑफ पावर बना दिया जाएगा. मिलिट्री imposed emergency rule created new administrative structure after it ousted the elected government of Aung San Suu Kyi on February 1st, 2021, arresting her and members of her ruling National League for Democratic Party. तो उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनके जितने भी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स थे उनको गिरा दिया गया, मतलब पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया जो इलेक्टोरल मैकेनिज्म्स है. The military claimed Ms. Suu Kyi government failed to address fraud claims in 2020 elections, though independent observer did not find any irregularities. So that means यहाँ पर कोई भी irregularities find नहीं किया गया, लेकिन elections को
रद्द कर दिया गया एंड मिलिट्री कू हो गया, ठीक है. सो इलेक्शंस विल बी हेल्ड विद इन 6 months आफ्टर द इमरजेंसी पीरियड इज लिफ्टेड, ही सेड. The existing administrative bodies formed after military takeover, including State Administration Council, have been dissolved and all the government functions have been handed to the National Defense and Security Council, Mr. Zhao Min-tun. उनके अंदर जो है सारा पावर, उनके पास सारा पावर है. So it is a classic case of authoritarianism, ठीक है. Authoritarianism का ये classic case है जिसमें authoritarian rule जो है it is रूल ऑफ वन पर्सन, ठीक है. तो एक अथॉरिटेरियन रूल जो है हमें म्यांमार में देखने को मिलता है, ठीक है. तो देखते हैं अब क्या होता है. 6 month बाद एक इलेक्शन की जो है यहाँ पर बात की जा रही है. लेट अस सी व्हाट हैपेंस, ठीक है. Alright, with this we have come to end of today's discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion really soon. Till then, take care and thank you.